Hi students, how are you all? I hope you all are doing great. So everyone, today we're going to be starting with grade 7 biology chapter number 11, that is transportation in animals and plants. So everyone, I have divided this chapter in two halves. In today's half, we'll be doing transportation in animals, human body में transportation कैसा होता है. In my next video we'll be doing transportation in plants कि plants में चीज़ों का transportation कैसा होता है. Before moving to on this thing both पे, what is transportation? Transportation का मतलब क्या होता है? अगर हम normally transportation की बात करो, transport is anything which carries you from one place to another place. In the same way, what helps in the transport and what transports in our body? In our human body, the blood transports throughout the body. ठीक है, जो हमारा blood है पूरी body में circulate होता है. We say circulate. Okay, circulate means moving throughout. So जो हमारा blood है पूरी body में throughout हमारा move होता है. किसमें? Blood vessels में. Okay, so the blood circulates in the human body. So see, what is blood? Blood is the fluid which flows in our blood vessels. Now मैंने आपको ये तो करा दिया. Let us start with our circulatory system, everyone. Before I say anything more, what is a circulatory system, everyone? Before beginning, everyone, circulatory system is that system in which the blood circulates in our body in the form in the blood vessels. It circulates in the blood vessels. Now, what are the major components of your circulatory system? There are three. You have your blood, you have your blood vessels, and the most important, heart. Right, everyone? So now, without wasting time, let's begin up with the blood. So everyone, जो हमारा blood होता है, blood is a red fluid which flows in our blood vessels. It transports substances like digested food from small intestine to other parts of the body. It carries oxygen from lungs to cells of the body. It transports waste removed from our body. ये तो सारे हो गए हमारे blood के functions. Blood के क्या क्या functions है? Basically, blood है क्या? Blood is a red colored fluid. वो एक red color का fluid है जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है. एक ऐसा एक फ्लूइड जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, किस में? इन द ब्लड वेसल्स. राइट एवरीवन. एंड ये कहाँ से होता है? हार्ट इसको पंप करता है. राइट एवरीवन. नाउ अब इस ब्लड के फंक्शन क्या है? अब एक्चुअली ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कैरी करते भी है, जो हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली ब्लड के फंक्शन क्या है? सबसे पहले वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, हमारी फूड में जो अब यू ऑल नो कि हमारा जो फूड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होता है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में कैसे जाता है? हाउ डू यू गेट एनर्जी? बिकॉज ऑफ ब्लड. बिकॉज द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दिस डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन to the other parts of the body. Also, जो आपका blood है, it carries oxygen. कौन से cells में होता है? वैसे RBCs में होता है. What? Oxygen. It carries oxygen from, now see, from the lungs. जो हमारे lungs हैं, it carries oxygen from the lungs and takes it to the other parts of the body. Right? Function of the pulmonary veins. Right everyone. अब हमने इतना तो पढ़ लिया. Also there are many functions of blood. Right, like कि वो बहुत सारे waste materials करता है, like kidneys में अभी हम पढ़ेंगे जो. Right, it also helps in the transportation of the waste materials. Right. अच्छा हाँ, before I begin anymore, why is the color of the blood red, everyone? It's a good question कि blood का जो हमारा color है वो red क्यों होता है? Why is the color of the blood red? So now see everyone, जो हमारा blood है, it is red in color because it contains a pigment called hemoglobin.
contains a pigment called hemoglobin. हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है. जैसे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो उनको एक ग्रीन कलर देता है, वैसे ही हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है जो हमको रेड कलर देता है. राइट एवरीवन? सो नाउ सी, where's my highlighter? See, the fluid part of the blood is called the plasma. अब ब्लड के हम यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. अब देखो यहाँ पे आपको सारे बताए हैं, the cells, the types of cell like RBCs which contain hemoglobin. Right, hemoglobin binds with oxygen and transports it to other parts of body. Okay, सब देखो, let's see this image everyone. Oh sorry, I'm very sorry. Yeah everyone, see this thing. Can I edit it? Then wait a minute everyone. Yeah, see. Yeah. See, our blood cells, हमारे blood के cells. These all are your blood cells. अभी जब NCERT में पढ़ोगे. See, this is my blood. Blood जो है हमारा, as I told you, उसके अंदर कुछ cells होते हैं हमारे blood में. Now let's read कि कौन कौन से cells होते हैं हमारे blood में. In our blood, we have the platelets, we have the red blood cells, we have the white blood cells. These are the three main cells of our blood. So first let's start with the platelets. Platelets को you also called as thrombocytes. You call them as thrombocytes. Platelets का काम क्या होता है? You all can see that these are your platelets. अब platelets का function is the clotting of the blood. Clotting of the blood. So now for example say that if you got hurt, अगर आपको चोट लग गई and you're bleeding, after some time your hurt, your wound gets covered with some coating. Right, you might have noticed कि जब ये आपको लगती है उसकी थोड़ी देर बाद जो भी आपकी चोट होती है whatever, it gets a covering. उस पर एक छोटी सी कवरिंग आ जाती है and blood जो है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाता है. क्यों होता है? Because of platelets. अगर ये प्लेटलेट्स ना होते हमारी बॉडी में, देन जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ द ब्लड निकल जाता एंड अ पर्सन कुड इवन डाई. ठीक है, ब्लड अगर निकलता ही रहता, वो बंद ना होता, वो क्लॉट्स ना होता, पर्सन कुड हैव डाइड. राइट, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? टू क्लॉट द ब्लड. टू क्लॉट द ब्लड. इफ आई टॉक अबाउट द red blood cells or the RBCs are rich. So these cells lack nucleus basically. इन cells में nucleus नहीं होता है. Why? Because it increases their area. This increases their surface area. Now you see, ये मेरे RBC हैं basically. RBCs ये देखो, इनमें आपको कोई न्यूक्लियस नहीं दिखेगा. इनमें तो फिर भी होता है, इसमें आपको नहीं दिखेगा बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन. क्या ऑक्सीजन कैरी करते हमारी पूरी बॉडी में. ठीक है, ऑक्सीजन. एंड ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. राइट, एंड इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. एंड दे आर स्पेशली रेड इन कलर बिकॉज यू ऑल नो दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड hemoglobin. Remember this term, kids, remember. Right, so next is my favorite, RBC. Everyone, RBCs are the soldiers of our body. ये हमारी बॉडी के soldiers हैं. ठीक है, मतलब दे प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड वायरस एंड इन्फेक्शन. आपको कोई भी आपकी बॉडी में if you get cold, right, it means that your RBCs are not fine. You're not always bound with cold, right? You get cold sometimes, no? So these white blood cells help prevent your body, protect your body from virus infections and etc. ठीक है. If you talk about the types of RBCs, WBCs, this is not in your course. You will learn it in your higher
grades. Fine, everyone. Yeah. So I was not here. I was at books only. Yeah. Wait a minute, everyone. Let me get back to my book. Yeah. So we were doing this topic. Yes. Let me erase this thing. Let's read it. I don't know what's happening. Something is wrong with my, iPad. I don't know. Okay, Nancy, everyone. The fluid part of the blood is called plasma. ये मैंने आपको बताया नहीं. जो हमारा blood है ना, हमारे blood में एक liquid portion होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा. ठीक है, हमारे ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा. ये प्लाज्मा एक येलो कलर में होता है एंड इट इज़ वेरी स्टिकी. इट इज़ वेरी स्टिकी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड. प्लाज्मा हमारी ब्लड का इट इज़ अ येलो स्टिकी kind of liquid present in our blood. Okay, right? I am sorry. In this corona time, many hospitals are asking for this plasma only. Right, let's move. Now, we learn in this one, we learn about the cells of our blood. जो भी हमने कर लिया complete. RBCs, WBCs, right? One type of the cells is the red blood cells which contain a red pigment called the hemoglobin. हमने डिस्कस कर लिया, राइट? हेमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज़ अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड. हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन. अब जो आपका हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से बाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन, राइट? इफ देयर वुड बी नो हेमोग्लोबिन देयर वुड बी नो ऑक्सीजन. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. We all know this thing. Let's move on. Yes, the blood also has white blood cells. They fight against germs from entering our body. Then we have the platelet. The clot is formed because of the presence of another type of cell called the platelets. Now, a new thing for all of you that I would like to tell. I'll write it in my notepad or something like that. See, everyone, your RBCs को हम एक और नाम से कहते हैं erythrocytes. It can come as a one marker in exam. For your white blood cell, इनको we say as leukocytes because they do not have any color. If I talk about the platelets, इनको we say as thrombocytes. I hope that's clear to you. And to remember, RBCs lack nucleus. मतलब इनमें nucleus नहीं होता. In order to increase the space. Okay. Okay, everyone, let's return back. Okay, we have done with the blood wala portion, and blood wala portion though was very very easy, everyone. Now, everyone, let us move to the blood vessels. Before I move to this blood vessel wala topic, let me show you from my this thing. Yeah, see your blood vessels. This is my heart. अब now be very careful. हमारी जो blood vessels है, सबसे पहले blood vessel होती क्या है? Blood vessels are the thin tube-like structure. They are the thin tube-like structure. They're very thin like tube-like structure which carry blood in them. मतलब ये एक पतली सी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन है, जो आपका ब्लड है, इट इज़ देयर. Okay, blood gets transported in your blood vessels, right? Your blood vessels carry blood. Now, basically, your blood vessels
be of three types. In your course, you do not have your atrioles and venules. You can study them later. Blood vessels are of three types: veins, arteries, and capillaries. Let's read about them. So everyone, your veins are those blood vessels which carry deoxygenated blood from the body parts back to the heart, and the arteries are those blood vessels which carry the oxygenated blood from the heart to the other parts of the body. मैम ने कहा क्या? Let's listen carefully. अब सुनो मैंने कहा क्या. See, सबसे पहले before knowing what's your veins and arteries, see, deoxygenated blood क्या होता है and what is your oxygenated blood? Deoxygenated blood मतलब the blood which is not rich in oxygen. जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब इस ब्लड में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन. उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है. अब जो वेन्स है, जो वेन्स हैं ये हमारी बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट, सॉरी एक्सेप्ट हार्ट, लाइक लंग्स, योर हेड, हैंड, फुट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, और हार्ट में दे देती है. पर अगर हम आर्टरीज के बारे में बात करें, दे आर दोज ब्लड वेसल जो हमारी हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ लेके जाती हैं? बॉडी पार्ट्स में. Is that clear everyone? I hope it is. Yeah. So see now everyone. अब जो हमारी God, your blood vessels basically divided into arteries, veins and capillaries. Okay, arteries, veins and capillaries. See, अब veins क्या होती हैं? जो veins होती हैं, we discussed, they are the vessels which carry the carbon dioxide rich blood from all the body parts back to the heart. मेरे बॉडी पार्ट से वो वापस लेके जाती है ब्लड हार्ट में. मेरे बॉडी पार्ट से वो हार्ट में लेके जाती है ब्लड. कौन से वाला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता. ओके, अब जो ये है, ठीक है, द वेन्स हैव थिन वॉल. इन वेन जो होती है ना, इनमें थिन वॉल होती है, मतलब इनमें पतली वॉल्स होती है, एंड इनमें बहुत सारी वॉल्व्स होती है. अब देखो, अब अभी हमने पढ़ा कि जो ये वेन्स होती हैं, ये जो ब्लड है ये हमारे बॉडी पार्ट से लेकर जाती है हार्ट में, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में जा रही है. अगर मेरा किडनीज यहाँ है, ये वापस अगर ब्लड लेके जा रही है, मतलब ऊपर लेके जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है. अब ये भी डर है, लिसन वेरी केयरफुली, कि जो ये ब्लड है ये वापस गिर जाए पीछे. क्या पता जो ये ब्लड है पीछे गिर जाए. इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो ब्लड है ये ऊपर ही फ्लो करे, ये पीछे ना गिरे, इसके लिए हमारे पास होती हैं वॉल्व्स. ओके, वेराज हमको ये आर्टरीज में नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि आर्टरीज एकदम ठीक डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, ओके.
सो सी इन वेन्स विच अलाउज ब्लड टू ओनली फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, ताकि वो और किसी बॉडी ऑर्गन में जाके चली ना जाए. नेक्स्ट आता है हमारे पास मैंने आपको वो नहीं कराया ना, आर्टरीज. वेयर आर द आर्टरीज? ओके, हियर इट इज. वेट, गॉड, ओह व्हाई इज इट नॉट गेटिंग इरेज्ड? ओके, फाइन. सी, अब देखो आर्टरी क्या होता है. आर्टरीज जो होती है दे कैरी ऑक्सीजन वाला ब्लड to from the heart to the parts of the body. Since blood flows in a rapid at the high pressure, arteries have thick elastic walls. अब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है, so for example, I'm not good at drawing people, so do not mind if I draw something bad. So say for example this is a heart. अब इस हार्ट से जो ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होती है आर्टरीज. और इन आर्टरीज में एक बहुत हाई प्रेशर होता है. इन आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर होता है बिकॉज जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से पंप करता है ब्लड. ठीक है, वो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है. तो इनमें हमको वर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज द ब्लड इज फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड ये बहुत थिक होती है बिकॉज ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है. बिकॉज हार्ट बहुत प्रेशर से पंप करता है ना, ये तो नहीं ना हार्ट है तो इट पंप फ्रॉम वेरी मच, यू नो, लाइक दैट. ओके, सो सी अब कैपिलरीज क्या होता है. द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स. ऑन रीचिंग टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू थिन कॉल्ड कैपिलरीज. अब बेसिकली ना ये सी कि होता क्या है. व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज वो होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो मेरी वेन्स एंड आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं. ये मेरी कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है. किसको कनेक्ट करती है? वेन्स एंड आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं. फाइन. कहाँ आपको ये मिलेगी? ये आपकी फिंगर टिप्स पे, छोटे छोटे रीजन्स पे, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन. सी, हाँ, देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज. आपकी बुक में दिया नहीं है क्या एनसीईआरटी में? नो प्रॉब्लम, वील सी. नाउ सी एवरीवन, व्हाट आर पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स? पल्मोनरी, अब देखो, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स ये उल्टा काम करती हैं. अभी हमने पढ़ा कि जो पल्मोनरी जो नॉर्मल आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड लेती हैं, हार्ट से ब्लड लेती हैं और बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और हमने वेन्स का देखा कि वो बाकी बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. इतना तो आपको हुआ ना क्लियर? वेट, मेरे को जूम करना दो ये वाली पिक्चर, फिर हम समझेंगे. सी अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, उस ब्लड को लेके जाती है बॉडी से बॉडी पार्ट्स तक. नाउ वी विल सी दैट कि द वेन्स जो हैं वो लेके जाती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स से हार्ट में लेके जाती हैं. जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होता है वो. इतना तो आपको क्लियर है. अब अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनका उल्टा काम होता है. जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका ये काम होता है कि वो हार्ट से जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र करती है लंग्स में. और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वेट, लेट मी रिपीट. जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड हार्ट से लंग्स में लेके जाती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वेराज जो आपकी पल्मोनरी वेन है ये आपके लंग्स से वापस हार्ट में लाती है ब्लड. और जो ये ब्लड होता है, वेट, जो ये वाला ब्लड होता है ये ऑक्सीजन में रिच होता है. हुआ ना उल्टा काम? अभी हमने इतना पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं वो तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं ब्लड,
बट जो ये है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. So they can be said as exceptions, right? Okay everyone, I hope till here it is clear to you. ऊपर आपकी बुक में दिया है, let's read it over here. कि जो pulmonary artery हैं, they carry blood from the heart, so that it is called an artery and not a vein. Okay. It carries carbon dioxide rich blood to the lungs. कौन? Pulmonary artery. Pulmonary vein carries oxygen वाला blood from the lungs back to the heart. Right? I hope it's clear to you everyone. Okay. Now we will be beginning with the beautiful topic that is the human heart. Everyone, today we will study only and only this thing, your circulatory system. ठीक है? In my part 2 वाली video we will be doing the excretory वाला system, that's your kidneys. Okay? Okay everyone, let's come back to the heart. Where's my heart? Yeah, now see everyone, this is my, let me take a bright pen. Oh god, this is my human heart. ये हमारा human heart है. Guys, this concept is very very important, very important. Listen carefully. सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो लोकेटेड कहाँ होता है? लेट मी एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम, इट वुड बी मोर इजी फॉर यू. अब देख लो एक बात, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है ना, इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. ये जो हमारा हार्ट है ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है और ये हल्का सा लेफ्ट की टूवर्ड्स टिल्टेड है. इतना आपको क्लियर हुआ? अब इट इज सिचुएटेड बिटवीन आवर लंग्स. मेरे दो लंग्स के बीच में मेरा यहाँ पे हार्ट आता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय हार्ट. अब देखो, अब मेरे हाथ जो है, सबसे पहले हम इसके दो चेम्बर्स कर लेते हैं. पहले मैं इस हार्ट को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. एक ऊपर वाला पार्ट मेरा हार्ट का, एक नीचे वाला पार्ट. जो ऊपर वाले हार्ट के पार्ट होते हैं ना, हार्ट के ऊपर वाले, दी अपर पार्ट्स ऑफ द हार्ट, इनको हम कहते हैं एट्रियम्स. क्या कहते हैं? एट्रियम्स. जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, हार्ट के अपर पोर्शंस, उसको हम कहते हैं एट्रियम्स. जो हार्ट का नीचे जो लोअर पोर्शन होता है हार्ट का, हम उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स. इतना आपको हुआ क्लियर कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अपर पोर्शन को हम कहते हैं एट्रियम, हार्ट के लोअर पोर्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. राइट? अभी हमने इतना पढ़ा. चल बहुत हो गया. अभी तक हुआ क्लियर आपको? अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा हार्ट है ना, ये हार्ट के जो चेम्बर्स है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है यार. ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. इन दोनों के बीच में एक वॉल है. इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम. अब ये वॉल है क्यों? अब ये वॉल दोनों के बीच में इसलिए है सो दैट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जाके मिक्स ना हो जाए. मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो जाके ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए. अभी हमने पढ़ा था हार्ट के दो चेम्बर. अब जब के दो चेम्बर हैं, ये वाला, इसको ना आप डिवाइड कर दो. पहला तो आपका, अब आपके जो हार्ट है ना उसके 4 चेम्बर होते हैं. कितने होते हैं? 4 चेम्बर्स. योर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. ऊपर वाला राइट एट्रियम
नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। इतना क्लियर है? क्योंकि ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, तो ये राइट साइड पे है, तो ये होगा ऊपर वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये होगा राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना हुआ क्लियर? ओके 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 फाइन, टेक इट कूल, टेक इट कूल। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में होती है मेरी वॉल्व्स। क्या होती है? वॉल्व्स। अब क्योंकि हमको पता है ब्लड को कभी यहाँ से ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है, तो कभी ऐसे में फ्लो करना पड़ता है, तो वॉल्व्स होती हैं ताकि एकदम ठीक वो हमारे ब्लड में, सॉरी हमारे हार्ट में ठीक हो रहे, ठीक एक अच्छा एक फ्लो रहे। अब ध्यान से देखो ब्लड होता क्या। अब हम और पार्ट्स को देख लेते हैं हार्ट के। दिस इज माई एरोटा। व्हाट इज दिस? दिस इज माई एरोटा। यहाँ से ब्लड मेरा बाहर जाता है, बाहर। ये मेरी पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब यहाँ से ब्लड जाता है मेरे लंग्स में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ भी पल्मोनरी आर्टरीज है। यहाँ आ जाती है आपकी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? वापस लंग से लाती हैं हार्ट, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हुआ इतना क्लियर आप सबको? अब देखो, एंड और भी चीज़ें लाइक दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, जहाँ से ब्लड अंदर जाता है एंड समटाइम्स बाहर आता है। इंफीरियर वेना कावा, अंदर जाता है बाहर आता है। फाइन एवरीवन, क्लियर? ओके, अब देखो अब होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि इनमें सेप्टम इसलिए होती है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। अब देखो, हाँ अभी जो मैंने आपको वॉल्व्स बताई थी, ये वाली जो वॉल्व है इस साइड पे, दैट्स योर ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो यहाँ पे होती है मिट्रल वॉल्व होती है। अब ब्लड का पूरा फंक्शनिंग होता कैसे है, ब्लड अंदर आता कैसे है एंड बाहर कैसे जाता है, लेट्स सी। देखो ओके सी, अब देखो यहाँ भी हमने पढ़ा था कि यहाँ मेरी पल्मोनरी आर्टरी थी, मतलब अब यहाँ से मेरा ब्लड लंग्स में जाएगा और यहाँ से अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो जब ब्लड, अब देखो सुपीरियर वेना कावा से जब ब्लड अंदर आया ना, जब सुपीरियर वेना कावा से ब्लड अंदर आया हमारा, तो सबसे पहले वो जाता है इस वॉल्व में जाता है। इतनी सारी आप देख रहे हो ना, ये सारी वॉल्व्स ही हैं ताकि एक अच्छा एक फ्लो रहे। राइट एट्रियम में एंटर होता है सबसे पहले ब्लड, द ब्लड एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। ओके, अब इस राइट एट्रियम से यहाँ पे जाता है, तो आपको एक बड़ी सी एक वॉल्व दिखेगी जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद दिस ब्लड एंटर्स इन योर राइट वेंट्रिकल, लोअर चेम्बर ऑफ द राइट हार्ट। अब यहाँ से जो ब्लड है ये ऊपर निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और ये कौन सा ब्लड है अभी हमको पता नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। अब ये यहाँ से ये ब्लड यहाँ से जाएगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल से ऊपर जाएगा, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, फिर जाएगा यहाँ से लंग्स में। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी बॉडी थी, यहाँ मेरा कोई लिवर कह लो, यहाँ मेरा लिवर था, यहाँ से द ब्लड एंटर्ड, इट एंटर्स इन द सुपीरियर वेना कावा एंड देन इस सुपीरियर वेना कावा से यहाँ गया सबसे पहले राइट एट्रियम में हमारा ब्लड गया, फिर उसके बाद फिर वहीं से जो हमारा ब्लड है वो गया सबसे पहले फिर लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल में, फिर उससे बाहर निकल गया कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी किसको कनेक्ट करती है? लंग्स एंड हार्ट को। सो डायरेक्टली हमारा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? डायरेक्टली लंग्स में।
ओके, अब नाउ लेट्स सी कि अब होता क्या है जब लंग्स से हमारी बॉडी में ब्लड आता है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। सी, अब सबसे पहले किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा ये। अब नाउ सी, बिकॉज ये, लेट मी क्लीन दिस एरिया फर्स्ट। अब जो हमारे ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर हुआ, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एंटर हुआ, राइट। अब एंटर हुआ यहाँ पे, कहाँ गया सबसे पहले? यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। कैन यू सी, इस पोर्शन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एंड इस पोर्शन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट? ओके, राइट। अब सबसे पहले जो आपका ब्लड आया आपके लंग्स से, सबसे पहले गया आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब उस लेफ्ट एट्रियम से गया ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लोअर चेम्बर ऑफ माय लेफ्ट हार्ट। अब यहाँ से वो गया, निकला अरोटा में गया, एंड अरोटा से वो बाकी मेरी बॉडी के ऑर्गन्स में चला गया, कौन से? मेरी बॉडी ऑर्गन्स में कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। दिस इज हाउ योर हार्ट फंक्शंस। आया समझ? ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि हाउ डज आर हार्ट फंक्शंस पूरा, कि इस पोर्शन से जब इधर आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अंडर होता है एंड ऑल, एंड जब यहाँ से होता है, फाइन। सो योर ह्यूमन हार्ट का पोर्शन इज डन नाउ। नाउ लेट्स डू दिस ह्यूमन हार्ट वाला पोर्शन फ्रॉम योर बुक। सी, द हार्ट। व्हाट इज हार्ट नाउ? Heart is an organ. Oh God. So your heart is an organ which beats the blood continuously to act as a pump. It transports the blood which carries it to other parts of the body. Right? It's a muscular organ which pumps the blood to other parts of the body. We all know. ठीक है? See, okay. As we just discussed कि how ये सब होता है. Heartbeat, everyone, what is heartbeat? You all know कि heartbeat is the number of times your heart pumps, ठीक है? Normally average है 72 to 80, मतलब 72 to 80 times आपका heart per minute beat करता है, right everyone? So I hope the working of the human heart is very much clear to you. Let me re-explain. यहाँ this is my pulmonary veins. अच्छा ठीक है. So from the superior vena cava the blood enters in. Here is the deoxygenated, it enters in and it goes in through the, where? Yes, it goes through the pulmonary artery. It goes to the lungs. Then from this portion, when the oxygenated blood enters from the lungs, it goes here. It moves to the aorta and moves to the other parts of the body. Right? As मैंने भी डिटेल में explain करा है in very simple language. I hope it is clear to you. Right? So with this we complete the circulatory system of our body. I hope you have understood this topic. If any doubt, write it in the comment section. Okay, and yeah, by whom was this heartbeat discovered? The circulation of blood. मतलब circulation of blood किसने introduce करा था, किससे discover हुआ था? By William Harvey. By William Harvey. Okay. So with this we have completed. In my next I'll explain the excretory system, that's of your kidneys. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.